So welcome you all. Now come to discuss Indian polity and Indian polity. In this session, we will talk of the Vice President. The Vice President. और ये जो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जो बातें हैं कि द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस इन द कंट्री, जस्ट बिलो द प्रेसिडेंट, the Vice President of India, the second highest constitutional office in the country. Ranked next to the President in the official hierarchy, this office is modeled after the American Vice Presidency. The Vice President's primary role is to step in as President if the incumbent President is unable to perform their duties due to death, resignation, or impeachment. Additionally, the Vice President serves as the Chairman of the Rajya Sabha, Council of States, the upper house of India's Parliament. So, Vice President, Chairman of Rajya Sabha, और राज्य सभा क्या बोलते हैं? अपर हाउस ऑफ इंडियाज पार्लियामेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट्स. Also, the Vice President acts as the President in absence of President due to resignation, death, etc. Now come to the election process. Election process of Vice President. Unlike the President, the Vice President of India is not directly elected by the people, but through an indirect election process. He is chosen by the members of both houses of Parliament, forming an electoral college. That is, for the election of Vice President, there is an electoral college. और ये जो क्या है, this electoral college differs from that of the president's election in two ways. ये थोड़ा डिफर करता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन से. वो क्या है देख लीजिए कि फॉर द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देयर इज एन इलेक्टोरल कॉलेज. इसमें जो मेंबर्स होंगे, it includes both elected and nominated members of Parliament, whereas the President's Electoral College consists of elected members. याद रखिएगा कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि it includes both elected and nominated members of Parliament, जबकि प्रेसिडेंट में सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं. सेकेंड पॉइंट क्या है इंपॉर्टेंट, it excludes members of state legislative assemblies, unlike the President's Electoral College. प्रेसिडेंट में क्या था कि इलेक्टेड मेंबर्स था लोकसभा और राज्यसभा का, साथ साथ आपका राज्य में जो विधानसभा है उसके इलेक्टेड मेंबर्स थे.
लेकिन वाइस प्रेसिडेंट में क्या है, राज्य के विधानसभा के मेंबर्स जो होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग नहीं लेते हैं। और पहली बात ये थी कि उसमें पार्लियामेंट के बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स भाग लेते हैं इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब क्या है कि एक इलेक्टोरल कॉलेज की बात हुई और नेक्स्ट आइए कि ये जो है प्रोसेस कौन सा है। तो प्रोसेस क्या है, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। याद रखिएगा, प्रोसेस में वही हमारा कि प्रोपोर्शनल representation, proportional representation by single transferable vote, and voting क्या होगा, through secret ballot। और आगे बात यह कि एनी इलेक्शन डिस्प्यूट्स और डाउट्स आर रिजॉल्व्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विल बी फाइनल। नेक्स्ट कम टू constitutional provisions for the vice president। Now the vice president and constitutional provisions। The Constitution of India outlines the following provisions regarding the vice president's office। आज शुरू करता हूँ आर्टिकल एंड नेक्स्ट कम टू जो डिस्क्रिप्शन कह सकते हैं हम लोग, किस आर्टिकल में क्या विवेचना होगी उसकी बात हो रही है। आर्टिकल 63 है ये, और आर्टिकल 63 में ये कहता है कि देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 63 में याद रखिएगा, ये पीटी में क्वेश्चन आ सकता है कि देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में है, तो याद रखेंगे आर्टिकल 63। नेक्स्ट कम टू आर्टिकल 64। द वाइस प्रेसिडेंट शैल बी द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ये क्या है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। Then come to Article 65। Article 65 में क्या है, the Vice President may act as the President in the event of a casual vacancy or absence of the President। ठीक है, यानी वाइस प्रेसिडेंट के रूप में काम करेंगे जब प्रेसिडेंट की कैजुअल वैकेंसी होगी। रिजिग्नेशन भी हो सकता है, डेथ भी हो सकता है। नेक्स्ट कम टू आर्टिकल 66।
the vice president is elected by both houses of parliament through proportional representation. Then come to Article 67. The vice president serves a term of 5 years. इनका टर्म जो है 5 years का होगा. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का भी 5 years का होता है. नाउ कम टू आर्टिकल 68. आर्टिकल 68 में जो प्रोविजंस है, प्रोविजंस रिलेटेड टू द टर्म एंड वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट. नाउ देन कम टू 69. आर्टिकल 69, ओथ ऑफ ऑफिस फॉर द वाइस प्रेसिडेंट. ये क्वेश्चन आ सकता है कि ओथ ऑफ ऑफिस फॉर द वाइस प्रेसिडेंट का संबंध किस आर्टिकल से है, तो याद रखेंगे 69. देन कम टू आर्टिकल 70. डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंशियल फंक्शंस इन इमरजेंसी. डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंशियल फंक्शन इन इमरजेंसी. एंड नाउ कम टू द आर्टिकल 71. ये आर्टिकल 71 रिजॉल्व्स मैटर्स relating to disputes over the election of the president और वाइस प्रेसिडेंट. जो मैंने बताया था ना कि अगर इलेक्शन है वाइस प्रेसिडेंट का, उसमें कोई डिस्प्यूट्स आता है तो इस डिस्प्यूट का जो निष्पादन होगा और सुप्रीम कोर्ट द्वारा होगा और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल होगा. इसकी चर्चा आर्टिकल 71 में. देन कम टू द qualifications for the vice president. Qualifications for the vice president. ये पहली बात तो ये कि must be citizen of India, भारत के नागरिक होंगे. सेकेंड पॉइंट होगा कि be at least 35 years of age is 35 years and above. And next, be qualified to be elected as a member of Rajya Sabha. Be qualified to be elected as a member of the Rajya Sabha. And next qualification, not hold any office of profit under the union or the state governments और एनी लोकल और पब्लिक अथॉरिटी. यानी कोई भी लाभ वाले पद पे, जिनको वाइस प्रेसिडेंट बनना है, कोई भी लाभ वाले पद पर वो नहीं रहेंगे. नेक्स्ट कम टू ओथ ऑफ ऑफिस. शपथ ग्रहण की बात जिसकी होती है. बिफोर एज्यूमिंग ऑफिस द वाइस प्रेसिडेंट मस्ट टेक एन ओथ ऑफ ऑफिस swearing to uphold the Constitution of India and faithfully perform the duties of the office. The President or an appointed representative administers the oath. जैसे प्रेसिडेंट का जो ओथ होता है, ओथ ऑफ ऑफिस होता है, वो एडमिनिस्टर करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का जो ओथ ऑफ ऑफिस होगा वो प्रेसिडेंट करेंगे. और प्रेसिडेंट यदि नहीं होंगे तो फिर अपॉइंटेड रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे, प्रेसिडेंट और अपॉइंटेड रिप्रेजेंटेटिव, याद रखिए. Then come to the conditions of office. और conditions of office में क्या होगा, वो ये है कि the constitution specifies two key conditions. 2 conditions होते हैं. Number 1, the vice president cannot be a member of either house of parliament or a state legislature. If elected, he or she automatically vacates his or her seat in those bodies. Okay? पहला कंडीशन मैं फिर रिपीट करता हूँ. द वाइस प्रेसिडेंट कैन नॉट बी ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट. ना तो लोकसभा के होंगे ना तो राज्यसभा के होंगे, उसके मेंबर नहीं होंगे.
या कोई भी जो राज्य का जो विधानसभा होगा उसके भी मेंबर नहीं होंगे। यदि वो वाइस प्रेसिडेंट वो बन जाते हैं तो ऑटोमेटिक वो पद खाली हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कंडीशन, द वाइस प्रेसिडेंट कैन नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, जो पहले ही बता दिया गया था। और वाइस प्रेसिडेंट किसी भी लाभ वाले पद पर नहीं होंगे। एंड नेक्स्ट कम टू टर्म एंड वैकेंसी। टर्म एंड वैकेंसी, टर्म में क्या है, द वाइस प्रेसिडेंट होल्ड्स ऑफिस फॉर 5 years, पहले मैंने बताया था कि 5 years के लिए होते हैं ये, बट मे रिजाइन एट एनी टाइम बाई सबमिटिंग ए रिजिग्नेशन लेटर टू द प्रेसिडेंट। याद रखिएगा कि वाइस प्रेसिडेंट जब रिजाइन करेंगे तो वो लेटर किसको देंगे, प्रेसिडेंट को देंगे, याद रखिएगा। इफ द वाइस प्रेसिडेंट्स term expires or the office becomes vacant due to resignation, death or disqualification, in a new election is held as soon as possible। जैसे वैकेंसी हो जाएगी वाइस प्रेसिडेंट का, चाहे रिजाइन कर दें, चाहे अदरवाइज कोई डिस्क्वालिफिकेशन हो जाए, डेथ हो जाए, तो शीघ्र ही इलेक्शन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी वाइस प्रेसिडेंट के लिए। Now come to the removal of vice president. Removal of vice president. The vice president can be removed before the completion of the term, but this does not require impeachment. यानी कोई भी राज्य जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो 5 साल टर्म के पहले भी रिमूव हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए इम्पीचमेंट नहीं होगा। रिमूवल इज डन थ्रू ए रिजोल्यूशन पास्ड बाय एन इफेक्टिव मेजोरिटी इन द राज्यसभा। राज्यसभा में इफेक्टिव मेजोरिटी से एक रिजोल्यूशन लेकर के उनको हटाया जा सकता है। एंड बाय सिंपल मेजोरिटी इन द लोकसभा। राज्यसभा में क्या है, इफेक्टिव मेजोरिटी होना चाहिए, और लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी होनी चाहिए। A 14-day notice must be given before such a resolution is introduced in the Rajya Sabha। 14 दिन का नोटिस भी दिया जाएगा। Now then come to the comparison with the US Vice President। Comparison with US Vice President। दोनों में क्या है, कि मान लिया इंडिया का हो जाए और यूएस का हो जाए, दोनों जो वाइस प्रेसिडेंट में क्या डिफरेंस है वो देख लीजिए। पहले इंडिया के बारे में बता रहा हूँ। द वाइस प्रेसिडेंट सर्व्स एज द सेकेंड इन कमांड टू द प्रेसिडेंट, स्टेपिंग इन टेम्पररी इफ द प्रेसिडेंट्स ऑफिस इज वैकेंट। यदि अगर यूएसए की बात करें इस पॉइंट के संदर्भ में, then the US Vice President is also the second in command but takes over the presidency if the President's office becomes vacant. Now next point of comparison, India. The Indian Vice President is ex officio chairman of Rajya Sabha, remember. और USA की जब बात आएगी, the US Vice President is the President of the Senate, remember. Then the third point of reference, Indian fact, the Vice President of India does not automatically take over the presidency but serves temporarily until a new president is elected। जबकि यूएसए में क्या होगा, the US Vice President assumes office immediately and serves the remainder of the president's term if the presidency is vacant। These are the points of difference between the Indian Vice President and the US Vice President. Okay. Then come to the power and functions. Vice President, power and functions। अब पावर फंक्शन में देखिए कि पहले बताया ही गया था कि
एक्स ऑफिशियो चेयरमैन चर्चा हुई थी। तो एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन द वाइस प्रेसिडेंट प्रिजाइड्स ओवर राज्यसभा सेशंस ensuring that parliamentary procedures are followed. वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के और राज्यसभा के प्रोसीडिंग्स को मॉनिटर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एक्टिंग प्रेसिडेंट, ये भी चर्चा हो गई पहले। अगर प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे, उनका डेथ हो गया, रिजाइन कर दिए या इम्पीचमेंट से हटा दिए गए, जो कि इंडिया में किसी प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट नहीं हुआ, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये आपका वाइस प्रेसिडेंट जो होगा वो प्रेसिडेंट के रूप में काम करेंगे। So the vice president steps in as acting president when the president's office is vacant due to death, resignation or disqualification. This role cannot last for a maximum of 6 months, during which time a new president must be elected. लेकिन जब प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे, डेथ हो जाए, रिजिग्नेशन हो जाए या इम्पीचमेंट हो जाए, तो ऐसी स्थिति में एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में वाइस प्रेसिडेंट काम करेंगे, लेकिन इसकी अवधि 6 महीना से अधिक नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट आइए, वो ये कि while acting as president, the vice president does not perform the duties of the chairman of Rajya Sabha. लेकिन जब अगर प्रेसिडेंट की वैकेंसी के बाद जब वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम करेंगे, तो फिर राज्यसभा के एक्स ऑफिसर चेयरमैन नहीं रह जाएंगे, एंड दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉल्स टू द डिप्टी चेयरमैन। वैसे स्थिति में जो डिप्टी चेयरमैन होंगे राज्यसभा के, वो काम करेंगे। नाउ कम टू द सिग्निफिकेंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। सिग्निफिकेंस ऑफ द महत्व है, तो महत्व स्पष्ट ही है, फिर भी टू वेरी ब्रीफ, the vice president's role is crucial in maintaining the smooth functioning of the Rajya Sabha and stepping in as a temporary head of the state when necessary. As a chairman, the vice president ensures order and decorum in parliament and can cast a vote in case of a tie. The vice president also appoints the chairman and members of various Rajya Sabha committees. That's all for the day. Thank you.